students, and welcome to the class. Today in our English reader book, we are going to start a new chapter, chapter number 10. And the name of the chapter is Owl and the Moon. This is a story of a friendship between the owl and the moon. But before starting the chapter, first we will see the hard words and words meaning. Okay? So, first hard word is Following. Following. What is the first word? Following. Yes, repeat with me. Following. Okay? When we are just following someone, we are going behind someone. जब हम किसी के पीछे पीछे जाते हैं, that is known as following. Okay? Second is Pillow. Pillow. What is the second one? Pillow. Pillow everyone know. That we use when we are going to the bed for sleeping. That is the pillow. In Hindi we say takiya. Then the third is Suddenly. Suddenly. What is the third one? Suddenly. What is the third one? Suddenly. Okay, suddenly means achanak se. Through. Listen carefully the pronunciation. Through. Through. What is the fourth one? Through. Okay. The pronunciation is through. Okay. Fifth. Loudly. Loudly. Okay. Following. Pillow. Suddenly. Through. Loudly. These are the hard words. And now we will see the words meaning. The first word is Seashore. Seashore. What is this? Seashore. And we can say the beach also. Seashore or beach. Now what is the meaning of seashore or the beach? The meaning of seashore is a place where there is sea, sand and rocks. A place where is sea, sand and rocks. That place is known as the seashore or we can say beach. Okay, जहाँ पे sea होता है, समुद्र होता है, sand means मिट्टी होती है और साथ में rocks होते हैं. That land or that place is known as seashore. The second is Supper. Supper. What is the second one? Supper. And supper means last meal of the day. Supper means last meal. Meal means food. जो हम पूरे दिन का लास्ट में जो खाना खाते हैं, normally we use the word dinner. Normally जो हम रात को खाना खाते हैं उसके बाद थोड़ी और कुछ खाते हैं. Means that is the last food, last meal of the day. The last meal of the day, दिन का जो सबसे लास्ट में खाया जाता है खाना, that is known as the supper. Understand? Seashore and this is supper. Okay students, these are the hard words and words meaning that you have to do in your notebook in a very good handwriting and in a proper manner. And now we will start our chapter. We will read the chapter now, the chapter number 10. And the name of the chapter is Owl and the Moon. So let's start the chapter. This story is related to an owl and the moon. There was a sad owl, and in this story we will just read that how the moon make the owl happy. Okay? हम इस स्टोरी में, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि एक सैड आउल जो था उसे मून ने कैसे हैप्पी किया. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. One night, owl went down to the seashore. He sat on a large rock and looked out at the waves. Everything
everything was dark. So, Owl felt a little sad. Yes, one night, Owl went down to the seashore. One night, एक नाइट को जो आउल है वो कहाँ गया? To the seashore. Seashore means समुद्र के किनारे. The place where there is sea, sands and rocks. There he sat on a rock. वहाँ पर उसने क्या किया? वहाँ जाके वो एक रॉक पर बैठ गया. He sat on a rock. He went to the seashore and sat on a rock. Everything was dark. वहाँ पे सब जगह अंधेरा था, पूरा डार्क हो रहा था. So इसलिए आउल कैसा हो गया? Sad. वो sad हो गया. Just then a small tip of the moon came up over the edge of the sea. Owl watched the moon as it climbed higher and higher into the sky. Soon he could see the whole round shining moon. Owl sat on the rock and looked up at the moon for a long time. Yes, just then a small tip of the moon came up. जब चारों तरफ अंधेरा था और आउल सैड हो गया, उसी टाइम एज ऑफ द सी, समुद्र की दूसरे साइड से, एज ऑफ द सी, इट मीन्स द पॉइंट वेयर द सी लुक्स लाइक दैट सी एंड स्काई आर टचिंग. तो दूसरे साइड से क्या लगा उसे, आउल को, डैट धीरे धीरे जो मून है वो ऊपर आ रहा था. आउल वॉच द मून. आउल ने ध्यान से देखा मून को कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, मून हायर एंड हायर इनटू द स्काई. धीरे धीरे वो तो स्काई में ऊपर आ रहा है. सून ही कुड सी द होल राउंड शाइनिंग मून. और थोड़े ही देर में मून को, आउल को वो पूरा शाइनिंग करता हुआ मून दिखने लग गया इन द स्काई. आउल सैट ऑन द रॉक एंड लुक्ड अप एट द मून फॉर अ लॉन्ग टाइम. आउल एक रॉक पर बैठ गया और बहुत देर तक मून को देखता रहा. अंडरस्टैंड? आफ्टर देन, इफ आई एम लुकिंग एट यू मून, then you must be looking back at me. We must be very good friends. Then Owl said to the moon. Owl ने moon से कहा, जब मैं तुम्हें इतनी देर से देख रहा हूँ, it means तुम भी मुझे देख रहे हो. It means क्या हुआ? हम दोनों तो एक दूसरे के good friends हैं. We must be very good friends. The moon did not answer, but Owl said, I will come back and see you again, moon. But now I must go home. Owl walked down the path. He looked up at the sky. The moon was still there. It was following him. Yes, when the owl said to the moon that we are friends, बट मून ने तो कोई आंसर रिप्लाई नहीं किया. देन आउल सैड, आउल ने क्या बोला, अब तो मैं जा रहा हूँ और मैं फिर दोबारा आऊँगा तुमसे मिलने के लिए. अभी तो मुझे, आई मस्ट गो होम, अभी तो मुझे घर जाना है. ओके, अभी तो मुझे घर जाना है, लेकिन मैं दोबारा आऊँगा तुमसे मिलना. देन द आउल वॉक्ड, और आउल फिर चलने लग गया. ही लुक्ड अप एट द स्काई, तभी उसने ऊपर स्काई में देखा. द मून वॉज स्टिल देयर, मून तो अभी भी वहीं पे था. इट वॉज फॉलोइंग हिम, और मून तो आउल के पीछे पीछे था. मीन्स मून वॉज फॉलोइंग द आउल. आउल ने देखा कि मून तो मेरे पीछे आ रहा है. नो नो मून, सैड आउल, इट इज काइंड ऑफ यू टू लाइट माई वे, बट यू मस्ट स्टे अप ओवर द सी where you look so lovely. Then the owl denied the moon. Owl ने moon को मना किया. What he said? No, no.
इट्स काइंड ऑफ यू, बहुत अच्छी बात है कि तुम लाइट माई वे मीन्स तुम मुझे मेरे रास्ते में रोशनी करके मुझे रास्ता दिखा रहे हो। बट तुम्हें यहीं पर ही समुद्र के ऊपर ही रहना चाहिए। तुम यहाँ पर बहुत ही, यू लुक सो लवली, तुम यहाँ बहुत अच्छे लग रहे हो। Owl walked on a little farther. He looked at the sky again. There was the moon coming right along with him. अब आउल थोड़ी सी दूर और चला, फिर उसने वापस स्काई की तरफ देखा। There was the moon coming right along with him. मून तो अभी भी आउल के पीछे पीछे आ रहा था। Means moon was following the owl. Then, dear moon, said owl, you really must not come home with me. My house is small. You will not fit through the door, and I have nothing to give you for supper. Okay? Then, after then, Owl said, Dear moon, तुम्हें मेरे साथ मेरे घर नहीं चलना है। Who said this? आउल ने मून से कहा। क्या कहा? कि डियर मून मीन्स बिकॉज दे वर फ्रेंड्स नाउ। तो मून को आउल ने बोला कि तुम्हें मेरे साथ मेरे घर नहीं आना चाहिए। माई हाउस इज़ स्मॉल, क्योंकि मेरा घर कैसा है? माई हाउस इज़ स्मॉल, मेरा घर छोटा है। यू विल नॉट फिट थ्रू द डोर, और तुम तो डोर से अंदर ही नहीं आ पाओगे। And I have nothing to give you for supper. और supper means the last meal of the day, or we can say the dinner. Okay? और मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर आप मेरे घर आओगे तो मेरे पास तो तुम्हें खिलाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। Owl kept on walking. The moon sailed after him over the tops of the trees. Moon, said Owl, I think that you can't hear me. So Owl climbed to the top of a hill. He shouted as loudly as he could, Goodbye, moon. Yes. Owl kept on walking. Owl चलता रहा. The moon sailed after him over the tops of the trees. और जो moon है वो भी बहुत ही quickly, sailed out means moved quickly and smoothly. वो भी quickly, बहुत ही जल्दी जल्दी owl का पीछा कर रहा था. Over the tops of the trees, पेड़ों के टॉप से. Moon, said owl, I think that you can't hear me. फिर आउल ने क्या बोला मून को? मुझे लगता है कि तुम मुझे सुन नहीं सकते। So owl climbed to the top of a hill. इसलिए जो आउल है वो कहाँ चढ़ गया? Top of a hill. पहाड़ियों के हिल के टॉप पर चढ़ गया। He shouted as loudly as he could. और उसने बहुत ही जोर से शाउटिंग की, और शाउट करके क्या बोला? गुड बाय मून। मून गुड बाय, उसने मून को गुड बाय कर दिया। द मून वेंट बिहाइंड सम क्लाउड्स. Owl looked and looked. The moon was gone. It is always a little sad to say goodbye to a friend, said Owl. Now what happened? आउल ने तो मून को मना किया था कि मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मेरा घर तो बहुत छोटा है, तुम तो उसके डोर से भी अंदर नहीं आ पाओगे। बट द मून वॉज फॉलोइंग हिम, लेकिन मून तो फिर भी फॉलो कर रहा था उसे।
सो ही शाउटेड लाउडली, तो उसने ज़ोर से शाउट किया गुड बाय मून। कहाँ से? क्योंकि आउल को लगा कि मून को सुनाई नहीं दे रहा। सो आउल एक ऊंची टॉप हिल पर जाकर उसने ज़ोर से क्या शाउट किया? गुड बाय मून। द मून वेंट बिहाइंड सम क्लाउड्स, और जो मून है वो बादलों के पीछे थोड़ा सा पीछे हो गया। बादलों की मीन्स मून के ऊपर थोड़े से क्लाउड्स आ गए, बादल आ गए। आउल लुक्ड एंड लुक्ड, द मून वॉज गॉन। आउल ने देखा कि मून तो चला गया है। इट इज़ ऑलवेज अ लिटिल सैड टू से गुड बाय अ फ्रेंड। फिर उस आउल ने बोला ये हमेशा ही सैड वाली बात होती है, सैड की, जब हम हमारे फ्रेंड को गुड बाय बोलते हैं। क्यों आप भी ऐसे करते हैं ना? जब आप खेलते हैं और आपकी मम्मा आपको बुलाती हैं, आपके भी दिल नहीं करता कि हम अंदर आ जाएं बाय बोलने का, फिर आपकी मम्मा बुलाती रहती है तभी आप अंदर जाते हैं। द सेम आउल कह रहा है कि अपने फ्रेंड को गुड बाय करने में बहुत सैड फील होता है। आउल केम होम। He put on his pajamas and went to bed. The room was very dark. Owl was still feeling sad. Owl came home. Finally, जो आउल है वो अपने घर पहुंच गया। He put on his pajamas and went to bed. क्योंकि बहुत रात हो रही थी इसलिए उसने अपना नाइट सूट पहना, मीन्स अपना पैजामा पहना, एंड वेंट टू बेड, और सोने के लिए बेड पे चला गया। द रूम वॉज वेरी डार्क। रूम बहुत ही कैसा था? डार्क था। आउल वॉज स्टिल फीलिंग सैड। आउल का घर कहाँ है? यू कैन सी इन द पिक्चर दैट देयर इज अ ट्री। ये ट्री की क्या है? Trunk, we just say the stem or trunk. There is a hole, and in this hole there is a house of a owl. Owl was still feeling sad. Owl अभी भी sad था। Suddenly, Owl's bedroom was filled with silver light. Owl looked out of the window. The moon was coming out from behind the clouds. Moon, you have followed me all the way home to cheer me up. What a good friend you are, said Owl. Yes. Suddenly, Owl's bedroom was filled with silver light. Owl बहुत सैड था अभी, क्योंकि उसके रूम में अब बहुत अंधेरा था. There was dark. Suddenly, अचानक से आउल के बेडरूम में क्या फिल हो गया? सिल्वर लाइट. एकदम से चांद की रोशनी में, दैट इज ऑफ सिल्वर कलर. तो सिल्वर कलर की लाइट पूरे रूम में फैल गई. आउल लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. आउल ने विंडो से देखा. द मून वॉज कमिंग आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स. जो विंडो से जब देखा आउल ने, तो देखा कि जो मून है वो क्लाउड से बाहर निकल रहा है. कमिंग आउट. मून, यू हैव फॉलोड मी ऑल माई वे टू चीयर मी अप. वॉट अ गुड फ्रेंड यू आर, सेड आउल. तो आउल ने मून से क्या बोला कि इसका मतलब तुम पूरे रास्ते मेरा पीछा कर रहे थे ताकि मैं सैड ना हूँ और मैं चीयर अप, हैप्पी रहूँ. वॉट अ गुड फ्रेंड यू आर, सैड आउल. आउल ने कहा तुम तो बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो. देन आउल पुट हिज हेड ऑन द पिलो and closed his eyes. The moon was shining down through the window. Owl did not feel sad at all. Owl
आउल ने मून से थैंक यू बोला कि तुम तो मुझे हैप्पी करने के लिए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। वॉट अ गुड फ्रेंड यू आर, तुम तो सच में बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। देन आउल पुट हिज हेड ऑन द पिलो एंड क्लोज्ड हिज आइज। ये बोल के आउल अपनी पिलो पर लेट गया और उसने आइज बंद कर ली। द मून वॉज शाइनिंग डाउन थ्रू द विंडो। और जो मून है वो अभी भी शाइन कर रहा था विंडो से। आउल डिड नॉट फील सैड एट ऑल। और जो आउल है वो बिल्कुल भी उदास अब नहीं था, क्योंकि अब उसका जो रूम है उस पूरे रूम में क्या हो रहा, रोशनी आ रही थी। सो इट वॉज नाउ नॉट सैड। एंड द राइटर ऑफ दिस पोम इज, द राइटर नेम इज आर्नोल्ड लॉबेल। आई होप ऑल ऑफ यू एन्जॉय द स्टोरी। आप सभी को स्टोरी अच्छी लगी। स्टोरीज ऑफ एन आउल who was very sad and of his friend Moon, who make him to cheer up by just spreading the moonlight everywhere. moonlight को सब जगह स्प्रेड करके मून ने अपने फ्रेंड आउल को हैप्पी किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। रीड द चैप्टर अगेन। गुड बाय।